Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and today I'll be taking you through current affairs, the heartbeat of every government exam. So, if you understand current affairs, you don't just prepare for the examination, but you prepare for the responsibilities you are aiming to carry as the future officer. So, this is why it is very important to understand these current affairs, not just for the examination, but for the future goals as well, because you will be taking responsibilities eventually. So, as one thinker, Socrates also said that the price of being uninformed is far, far greater than the effort of learning, right? Because only an informed mind can build an informed state, right? This is true. So, when we talk about news, how do we learn it? We go through the news, we understand that what happened with pre and mains perspective, right? For the exam perspective, right? Then we understand the what government initiative took, right? How, but what are reforms government came up with, right? What scheme, right? We understand this with the government measures, right? Then we understand the impact, right? The social impact it created, what impact it created on the society, right? And when we understand all these things together, right, we understand it by putting ourselves in that shoe, right? That how like what changes we would have made, right? In that sense we understand all these things, right? So basically news हमें बताता है that what happened, government actions tells us about the policies, about the scheme, about the responses, right? And this impact tells us that why does it matter for the society. And after seeing it from the angle of yours, it questions you that how you will deal with it, right, when you are in that chair, right? So this is why please understand that this is how you have to read the current affairs. You don't have to go with the headings and just reading it or mugging up, right? You don't have to put them into an example only in the examination. You have to implement it, you have to come with the changes, and you have to understand the story behind it. And that's what we do in my classes. We understand history, right? So let's move to current affair 1. As today's current affairs are very important, as it is seen in prelims and mains that repeated questions are asked on these topics. Now let's understand first what's our agenda today, what we'll be reading. So we'll be understanding Japan's earthquake and tsunami alert first, right? And about the Starlink's entry into India's internet market, right? What kind of changes it is going to bring, right? What reforms it will bring, and how it will impact rural areas, right? How it is linked to rural area. Then Putin's visit to India, what new changes are this relation is going to bring, what's the reason behind it, are these relations going to go far than import and export, are these relations going to build another strategy in the global issues. So Assam's tribal status controversy also we are going to read, and child marriage campaign in Rajasthan also we are going to read. So these two are very important from the perspective for the Indian society, ethics and essay writing as well, right? Understanding earthquake dynamics also, and then we'll understand what are the directions that we can have while reading these kinds of news. Now, moving to the current affairs. So Japan's earthquake and tsunami alert. So earthquake of 7.6 magnitude rocks Japan. So this triggers tsunami on northeast coast. Okay. Now what happened that Japan northeast coast experienced a powerful earthquake measured up to magnitude, very great, right? Like great in numbers. So this earthquake epicenter of the coast of Emoria prefecture, okay, or this is about 80 kilometer, like offshore 80 kilometer at the depth of approximately 50 kilometer, ठीक है. तो अब इसकी कहानी ऐसे है क्योंकि this earthquake originated beneath the ocean, ठीक है, it triggered tsunami warnings, ठीक है. तो coastal prefectures में including this Hokkaido prefectures also and Aomori prefectures, these were alerted, right? Routine. Right? Okay.
तो रिपोर्टर सेज कि कुछ कोस्टल एरियाज पे, ठीक है, बहुत छोटी-छोटी सुनामी वेव्स देखने को भी मिली है, राइट? सो अ फ्यू टेंस ऑफ सेंटीमीटर्स ऑफ सुनामीज वाज सीन बिफोर, ठीक है? दे वर ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड इवन आफ्टर द अर्थक्वेक एज अ फर्स्ट साइन ऑफ सी लेवल चार्जेस, ठीक है? इसीलिए दीज मेजर्स वर टेकन. So also in the areas like city of, like I told you, in Hikonoe, right, and the tremors were like felt very strong, okay? So this earthquake was registered as upper like 6 in like these Japan seismic intensity scales also, which is like strong enough to shake buildings, ठीक है, या फिर movement थोड़ी सी possible difficult करना, right? और this is going to like damage lots and lots of infrastructure as well, ठीक है? So इतना ज़्यादा triggering this waves were seen, this earthquake was seen, ठीक है? So what happened that rail services in the affected region were temporarily suspended, ठीक है, as a precautions. तो initially क्या हुआ कि basically measures लेने शुरू कर दिए because of these things that was seen, ठीक है. तो initial reporters ने indicate किया this power outage was also seen, ठीक है. So छोटे-छोटे areas में, छोटे-छोटे zones में these outage was seen, ठीक है. So though as like though as of now there are like no confirmed reports of like major nuclear plants, but then again these accidents are very large and there are like possibilities of large casualties. This is why these measures are taken, ठीक है. इतनी कहानी समझ में आई सबको? तो क्योंकि जापान इज लोकेटेड इन टेक्निकली, ठीक है, एक्टिव रीजन्स, तो इसीलिए इट इज लाइक पार्ट ऑफ नोन फॉर द रिंग ऑफ फायर. Another keyword which you can write for the Japan, it is ring for fire. Now we'll understand more about this in detail, that why it is called ring of fire and what's the story and history about it. Okay, but this is something that you have to write down. Okay. So let me explain you everything. So a strong earthquake of magnitude 7.6 hit about 80 kilometers of offshore from Ahomorio, right? So at a depth of around 50 kilometers below the seapad. That was seen in the Japan. ठीक है. तो this location is part of the like subduction zone, ठीक है. तो यहाँ पे जो है Pacific plate बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. This is why it is like lots of measures were taken on by the Japan government. So beneath the North American or Eurasia plates में, ठीक है. So a classic setup and cause powerful quake was like seen in this area, ठीक है. So Japan uses its own earthquake intensity system called the Shindo scale. Another thing that you have to write down. Earthquake को measure करने के लिए this is the scale that Japan uses, ठीक है. So which measures that how strongly the ground shakes of the surface are and not the energy released only but also the ground level of it also. So कुछ एओमोरी जो एरियाज हैं वहां पे बेसिकली दीज शिंदो बेसिकली दे वर सीन अपर देन 6, ठीक है. इतने स्केल पर ये देखने को मिला है, राइट. सो व्हिच मींस बिल्डिंग्स कैन बी डैमेज्ड, फर्नीचर्स जो है वो स्पॉइल हो सकता है, इट कैन फेल, राइट, एंड पीपल कैन नॉट मूव विदाउट सपोर्ट. इस हिसाब से जो है सुनामी और अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, ठीक है. सो नाउ दिस सुनामी थ्रेट वाज आल्सो सीन बिकॉज़ द अर्थक्वेक हैपेंड लाइक अंडर द ओशन, ठीक है, क्योंकि अंडर द ओशन हुआ है तो जिसकी वजह से सुनामी वार्निंग जो है तीनों रीजन्स में अब तक दे दी गई है, ठीक है. तो ऑफिशियल्स वार्न द वेव्स कुड राइज अप टू 3 मीटर्स, ठीक है. 3 मीटर मतलब 10 फीट की ऊंचाई पे, ठीक है. तो एंड इन फैक्ट विद इन द मिनट्स small tsunami waves were also seen, ठीक है. Of the 2 centimeters or 3 centimeters they were seen, but tsunami waves were also seen, which was another task that government had to plan, ठीक है. इतनी कहानी समझ में आई कि क्या क्या कर रहे हैं. तो जापान में जो छोटे-छोटे सुनामीज होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा सीरियसली लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस, मासिव फोर्सेस, और दूसरा बिकॉज ऑफ द ट्रेजिक हैव लाइक टोल्ड देम टू नेवर इग्नोर अर्ली वार्निंग्स, ठीक है. वो पहले ही बहुत ज्यादा मेजर ले लेते हैं व्हेन इट कम्स टू जापान गवर्नमेंट टेकिंग मेजर्स अबाउट दी दीज नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है. तो इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि हर मेजर अर्थक्वेक का, ठीक है, वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने वाली. क्या क्या डिस्ट्रप्शन होंगे? पहले तो दीज रेलवेज विल बी होल्टेड, राइट, टू प्रिवेंट एनी डिस्ट्रप्शन. दूसरा पावर कट्स को देख लिया जाएगा एंड अदर थर्ड थिंग इज सेफ्टी कट्स आल्सो, ठीक है. तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने मेजर्स लेके चलने वाली है. समझ में आई सारी कहानी, ठीक है. ओके, अब बात करते हैं कि एज आई टोल्ड यू टू राइट दिस वर्ड रिंग ऑफ फायर, कि हमेशा जापान में ही क्यों ये सारे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं. सो द रीजन इज कि जापान इज लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर, द वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव एंड एक्टिव सीस्मिक बेल्ट, ठीक है, दैट सर्कल्स द पैसिफिक ओशन, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सुनामी और अर्थक्वेक हमेशा देखने को मिलते हैं. एंड दिस इज व्हाई गवर्नमेंट टेक मेनी इनिशिएटिव मेजर्स बिकॉज ऑफ दिस, राइट. सो पैसिफिक प्लेट्स, फिलिपियन सी प्लेट्स, ठीक है, और हमारे जितने भी यूरेशियन प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस सबऑर्डिनेशन जोन्स आर लाइक ऑफशोर व्हिच आर लाइक हॉटस्पॉट फॉर द सुनामी एंड द अर्थक्वेक, ठीक है. इसीलिए इनको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर. इट कैन कम इन प्रीलिम्स क्वेश्चन, प्लीज डू राइट इट, ठीक है.
because this Japan came in news, ठीक है, because of the earthquake, so it could be asked in the prelims questions, ठीक है. Now Japan has faced huge earthquake before also, ठीक है, but it is like the reminder, the danger reminder कि क्यों हमें मेजर्स लेने चाहिए. दिस इज व्हाई गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव राइट नाउ, क्योंकि ऐसा कुछ हमें 2011 में भी देखने को मिला था, राइट. सो 2011 में 9.0 मैग्नीट्यूड टोहोको अर्थक्वेक वाज सीन, ठीक है, एंड इट वाज लाइक अ मासिव सुनामी, ठीक है, और ये न्यूक्लियर डिजास्टर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला था, राइट. तो दिस लाइक रीशेप जापान्स डिजास्टर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर आल्सो, ठीक है. वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम जापान में है, ठीक है. अनदर थिंग दैट यू कैन राइट फॉर द प्रीलिम्स, that world's fastest early warning system is in Japan, right, and it is like the strictest building codes are also measured there. दूसरा disaster resilient architecture भी बनाया गया है, और उसके बाद coastal tsunami barriers भी वहां पर बनाए गए हैं for these measures also, ठीक है. regular evacuation drills वहां पर होती ही रहती है, right, और वहां पे nuclear safety reforms भी measures किए जाते हैं, ठीक है. तो करंट earthquake जो है वो basically it's not happening in vacuum, right, it fits into a long pattern of Japan's history कि क्यों इतने सीरियस मेजर्स जापान अभी ले रहा है, ठीक है, क्योंकि 2011 में, इससे पहले भी 2025 से पहले भी इतनी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली. समझ में आई? Now why we are reading this? We are reading this for the GS paper number 1 because of geophysical phenomena, ठीक है. We are reading this GS paper 3 for disaster management, which you should write, and I can see that you are not writing. You have to write for GS paper 1, ठीक है. You have to write for GS paper 3, right. You have to write for GS paper 2 because it will come under governance, ठीक है. And under governance you can write about the emergency responses, ठीक है, and about the international practices in disaster responses कि बाहर की countries क्या responses लेती हैं, what measures do they take, and you have to understand the history also कि वो क्यों ऐसे measures लेती हैं. Understood? ठीक है. ऐसे पेपर में भी आएगा ये वाली चीज. इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है. Any question? So from this we understood कि 7.6 का magnitude, right, and there were some measures that was taken by the government, and there was a history of it जो 2011 से repeated है. This is why, right, they are taking these measures. ठीक है. Okay. अभी recently एक और earthquake आया था इंडिया में, कहाँ पे आया था? Like it was minor, but do you have any idea? Good morning. हो गई है तुम्हारी good morning? Okay. Now another news, which is Starlink reveals residential monthly subscription plan in India. ठीक है. Do you have any idea what it is? किस लिए है ये? उससे रिलेटेड इंटरनेट या समथिंग कॉर्पोरेट का उसने जियो के साथ भी करा है टू प्रोवाइड satellite network something like that. You read the news. Good. Okay. So basically December 2025, after months of waiting, finally Starlink, ठीक है, जो satellite internet है services, they owned by SpaceX, ठीक है. You have to write down. It is owned by SpaceX. They have like finally published its pricing for Indian customers, ठीक है. तो यहाँ पे basically measure that has been taken is for rural, ठीक है, rural placing, ठीक है. तो वो उस चीज को हम लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे, राइट. सो वेबसाइट पे Starlink is now shows that it is like residential plan, ठीक है. It will cost up to 8,600 per month. कितना? 8,600 per month, ठीक है. अब basically this should be like used and buy by like one time hardware kit which will cost about to 34,000, ठीक है, 34,000 के आसपास. So these services homing, ठीक है, these unlimited data, right, 99.9% uptime, functioning even in bad weather also, ठीक है. अब this Starlink, ठीक है, ये basically low earth orbit है, that is LEO, ठीक है, satellite that circles earth much closer than traditional satellites, और ये बहुत ज्यादा cheap होती है. This is why these are used, ठीक है. So now the planning is कि इसको rural time पे भी use किया जाए. So we'll be understanding कि जो भी हम rural places पे use करेंगे, will it be efficient or not, और basically कौन-कौन इसमें नहीं use कर पाएंगे, and what's the reason behind it, ठीक है. Do you have any idea about this? According to me, it's not that affordable because like Geo Air and exactly are providing the same benefits, but yeah, there are some problems with it, but yeah, they are much cheaper and more affordable. Yes. So basically Starlink is ready to get launched in nationwide also, ठीक है, not just in cities but potentially even in the remote villages as well, ठीक है, where traditional broadcaster or fixed line internet can never reach, ठीक है. तो ये initiative लेना है, ठीक है, but we are going to understand कि ये initiative basically impactful है ground reality पे या फिर नहीं है, right. So for many household this could be for like real alternative, ठीक है.
फाइनली जो हमारे जो चेंजेस है, ठीक है, दोज कुड बी सीन इन द रूरल हाउस होल्ड एज वेल, ठीक है. फॉर दिस दिस विल बी लाइक ग्राउंड बेस्ड टेलीकॉम टावर्स. सो जस्ट इंस्टॉल अ स्मॉल डिश एंड हार्डवेयर, ठीक है, प्लग इट इन एंड देन यू कैन यूज इट, ठीक है. बहुत ईजी रहेगा, बट देन अगेन इट इज एज ही सेड दैट इट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं प्राइस टैग्स की, स्टारलिंक इज लाइक हैव लाइक प्रीमियम ऑप्शंस फॉर इट, ठीक है, सिग्निफाइंट कॉस्टलियर देन द टिपिकल ब्रॉडबैंड प्लान्स इन इंडिया. जो बाकी प्लान्स हैं उनसे काफी ज्यादा कॉस्टलियर है, एज यू सेड, ठीक है. Why we are reading this? We are reading this for GS paper 3, which you have to write down, and I cannot see your pen moving. Long story. I'll tell you. Okay. So GS paper 3, ठीक है, क्योंकि ये आता है साइंस और टेक्नोलॉजी में. अंकिता, write down. This is the third time I'm telling you. Okay, for GS paper 3, this is important for science and technology. For GS paper 2, it is important for government policy or basically invention के लिए, interventions के लिए, and essay ethics in GS paper 4 also, because it tells about the digital divide, right? Okay. तो अभी बेसिक ऑफर दिया गया है कि मंथली प्लान जो होगा हमारा होगा 8,600 पर मंथ का, ठीक है. अब अफोर्डेबिलिटी हम बोल तो रहे हैं दैट विल बी लाइक इम्प्लीमेंटेड इन रूरल प्लेसेस आल्सो, बट 8,600 पर मंथ इज लाइक अ बिगर प्राइस, ठीक है. तो दैट्स लाइक रेगुलर सब्सक्रिप्शन फॉर एवरी मंथ फॉर इंटरनेट एक्सेस, ठीक है. तो वन टाइम हार्डवेयर कॉस्ट होगा हमारा 34,000 के आसपास, ठीक है. सो यू मस्ट बाय अ स्मॉल डिश एंड द स्मॉल इक्विपमेंट्स टू कनेक्ट इट एंड प्लग इट एंड देन यूज इट, ठीक है. तो फ्री ट्रायल हमें मिलेगा 30 डेज का, ठीक है. और उसके बाद में दिस सर्विसेज प्रोमिसेस अस कि अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, 99% का अप टाइम तुम्हें मिलेगा, राइट. एंड देन ओनली रेजिडेंशियल प्लेसेस लाइक प्राइस विल बी पब्लिश्ड, रेजिडेंशियल प्राइस विल बी पब्लिश्ड, ठीक है. तो दिस बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स, राइट, दीज प्लान प्राइस इज नॉट अनाउंस्ड येट, बट ये वाला प्राइस हमें अभी तक अनाउंस करा गया है, ठीक है. तो बेसिकली how you have to use it, you have to use cables in this, you have to use like the fiber optical lines for this, and then you have to use mobile towers on the ground, ठीक है. तो इस तरीके से फंक्शन करा जाएगा. Okay. So this Starlink, right? So this Starlink uses a network of many satellites, that is LEO, ठीक है. तो your dish talks to the nearest satellite system और उससे कनेक्ट होने के बाद will get the signals, ठीक है. तो डिफरेंस ये होगा कि Starlink does not need fibers to tower, ठीक है. और बेसिकली इसीलिए ये ज्यादा इम्पैक्टफुल है हमारे लिए, एंड स्पेशली इट इज इसीलिए ये यूज किया गया है या फिर इंट्रोड्यूस किया गया है हमारी रूरल एरियाज के लिए. बट देन अगेन देयर इज वन रीजन दैट दे कैन नॉट यूज, दैट इज इट इज कॉस्ट, ठीक है. समझ में आई? अब मे बी देन दैट टेल्स अनदर स्टोरी अबाउट द सोसाइटी. तो तुम्हें क्या लग रहा है कि कमी है गांव वालों के पास? बोल रहा है, मैं तो देख के आया हूं, मेरे इसमें नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है उसके बाद. That's true, that's very true. Okay. Okay. तो बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया है? क्योंकि इट इज लाइक क्विक रीच टू रिमोट प्लेसेस आल्सो, ठीक है. यू गेट इंटरनेट वेयर टेलीकॉम कंपनी स्ट्रगल टू बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. तुम इजीली ले सकते हो इसको. दूसरा यूजफुल सर्विसेज आल्सो, क्योंकि टेलीमेडिसिन है, ठीक है. डॉक्टर वीडियो कॉल्स यू कैन डू, राइट. बेसिकली बहुत ज्यादा, ये तो आई डोंट हैव टू इवन मेंशन कि कितने ज्यादा इंपैक्टफुल है, कितना ज्यादा इजी होगा रूरल एरियाज के लिए, राइट. एंड दैट इज इट इज गुड इन डिजास्टर सॉल्यूशंस आल्सो. हाउ इट इज गुड इन डिजास्टर सॉल्यूशंस? हाँ, जब भी कोई ग्राउंड नेटवर्क रियलिटी होगी तो वी कैन लाइक टेक मेजर्स अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. फिर उसके बाद पोटेंशियल टू एरियाज विद पुअर मोबाइल कवरेज आल्सो. हाउ? ठीक है. फिर एग्जैक्टली तो बेसिकली अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की. तो एवरेज मंथली दिस ब्रॉडकास्ट इज लाइक मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है. तो दिस इज लाइक कवरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेसेस, बट देन अगेन 8,600 पर मंथ इज लाइक वेरी कॉस्टली, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हु कैन अफोर्ड इट, ठीक है. अभी कौन अफोर्ड कर सकता है? तो लाइकली बिजनेसमैन अफोर्ड कर पाएंगे इसको, ठीक है, या तो रिच हाउस होल्ड अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है. जो मिडिल क्लास के लोग हैं दे क्वेश्चन दिस, ठीक है. फिर उसके बाद रिमोट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, प्राइवेट रिजोर्ट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट. बट अभी वो ये कि हर जगह स्प्रेड हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चनेबल बिकॉज ऑफ दिस प्राइस, ठीक है. समझ में आया इतना? नेक्स्ट न्यूज पे मूव करें. एनीथिंग यू वांट टू से इन दिस? कौन सा मीम? या
Okay. So Putin's visit to India, a new era in bilateral relations. So as I said in the previous class also, whenever two leaders or whenever any government authority meets, there is always a reason behind it. And whenever they meet, they always signal something. Even a handshake means something bigger, right? As I explained in the previous classes also. So after several years of global turbulence, so including the war in the Ukraine, shifting alliances or pressure from the Western countries also, this this Putin lands in like New Delhi, ठीक है? And this atmosphere is finally charged क्योंकि this is like the first visit to India since the Ukraine war began, ठीक है? तो उसके बाद ये basically बताएगा that what kind of relation Putin is like trying to build with us, ठीक है? From the moment he arrives, it's like clear this is not routine diplomatic call, ठीक है? There is something to it. It's more going to build relationship between us, ठीक है? किस तरीके के relationship build हो सकता है, that we'll study in this. So this Indian leadership gives him like a warm person welcome, ठीक है? मोदी जी खुद गए थे उन्हें welcome करने के लिए. So this means that they are planning something bigger into this, right? So during his 2-day talks between India or Russia that moves like quickly beyond protocol. So what unfold is like ambitious attempt by both sides to reshape and deep depth their like deciding old partnership, ठीक है? तो पहले का हमारा पार्टनरशिप कैसे थी? सिर्फ लेन देन की पार्टनरशिप थी, like they were giving to us, right? Yes, हम import कर रहे थे, right? And this kind of relationship we were building, ठीक है? So we are going to understand कि ये relationship जो हम build कर रहे हैं, do we need something else or not, ठीक है? So we क्या कर रहे हैं हम लोग? इतना लंबा हाँ भरे तुमने? So we'll understand this news with GS paper 2, which you have to write. GS paper 2, as it will tell us about international relations, okay, about foreign policies, about strategic and defense issues, okay. GS paper 3, which will tell us about economy, okay, energy security, about the trading also, which we'll discuss कि किस तरीके की trading import export होता है हमारे बीच में रशिया के बीच में. Then it will feature in essay also, in ethics also, in GS4 also, ठीक है, which tells India's role in global order. हाँ, तुमने न्यूज नहीं पढ़ी होगी. नहीं मतलब पता था बट हाँ लिख सकता. Okay. So for 3 years, India-Russia equation had become unusually narrow. ठीक है, क्योंकि इंडिया ने काफी अमाउंट ऑफ दिस डिस्काउंटेड रशियन ऑयल हमने लिया है, ठीक है, एंड रशिया बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर, राइट, ठीक है, बट द रिलेशनशिप बिकम्स एनर्जी हैवी एंड स्क्यूड, ठीक है, क्यों बना है? बिकॉज बेसिकली जो भी हम बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से, ठीक है, वो लार्ज नंबर पे हो रहा है. सो दिस इज द ओनली काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी वर हैविंग विद द रशिया, ठीक है. So this visit tries to correct that. India, Russia set themselves a big target that is 100 billion trade, $100 billion trade by 2030, which you have to write, and I cannot see the pen moving. इनका मेन टारगेट है कि बिग टारगेट है $100 billion ट्रेड बाय 2030, ठीक है. सो दिस मार्क्स द रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, सिर्फ ऑयल डिपेंडेंस नहीं होंगे, ठीक है, वी आर लाइक एक्सपेंडिंग आवर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन विद दैट, ठीक है, एंड दिस शिफ्ट इफेक्ट्स अ ब्रॉड जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन आल्सो, क्योंकि रशिया को चाहिए कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो चाइना के अलावा, ठीक है. दिस इज व्हाई दिस इनिशिएटिव हैज बीन डन, ठीक है. दूसरा, इंडिया नीड स्टेबल एनर्जी और डिफेंस सप्लाई चेन्स, ठीक है, इसीलिए ये चीज किया गया. तो देयर इज लाइक अ टू वे कॉन्ट्रडिक्शन दैट वी सीन, ठीक है. फिर उसके बाद दोनों को ही ऐसे रिलेशनशिप चाहिए जो मॉडर्न हो और जो सिर्फ 1980s में स्टक ना हो, ठीक है. 1980s का क्या था? बायर सेलर डिफेंस वाला सिस्टम था हमारा, ठीक है. वी यूज्ड टू इंपोर्ट डिफेंसेस फ्रॉम देयर, ठीक है, और वहां से ऑयल का हमारे पास आ रहा था. तो ऐसा ही रिलेशनशिप था, राइट. नाउ दिस मीटिंग इज टेलिंग अस कि वी वांट मोर रिलेशनशिप विद द रशिया देन दैट, ठीक है. ओके. तो बेसिकली दोनों ही कंट्रीज का दिस word has come, that is reimagining, which you can use in the governance also, in polity also, that is reimagining. Why it is named reimagining? Although like creating the whole scenario of trading and again like as like drawing over the
yes, yes, as it was like totally dependent on oil and defenses, ठीक है. Now earlier मॉडल क्या था कि रशिया जो है डिफेंस सिस्टम हमें सप्लाई करता था, ठीक है, या और इंडिया क्या करता, वो खरीदता था, ठीक है. ट्रेड जो था हमारा लिमिटेड रहता था, उसके अलावा जो एनर्जी थी वो हमारी डोमिनेटिंग रहती थी, ठीक है. उसके बाद कोई इंडस्ट्रियल या फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन हमारा होता ही नहीं था उनके साथ में, ठीक है. नाउ दे वांट टू मूव बियॉन्ड ऑयल एंड डिफेंसेस, इसीलिए इसको नाम दिया गया है रीइमेजिनिंग, लाइक वी हैव टू थिंक, ठीक है, वी हैव टू एक्सपेंड अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है. तो बेसिकली 2025 की मीटिंग जो है वो न्यू इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम ये फोकस करता है, जो वर्ड तुमने अभी नहीं लिखा है और लिखना है, दैट इज इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम, ठीक है. 2025 की मीटिंग ये क्या क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दिस इज गोइंग टू फोकस ऑन फर्टिलाइजर्स, ऑन एलएनजी, पीएनजी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, शिप बिल्डिंग के बारे में, अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैसेस के बारे में, हाईटेक कोलैबोरेशन के बारे में, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ठीक है. ये सारे टास्क कहीं ना कहीं मेजर किए जाएंगे इन दिस बिल्डिंग, ठीक है. तो जितनी भी नई लेबर मोबिलिटी होगी वो पार्टनरशिप हमें दिखाई देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग डिसीजन इज दैट इंडिया एंड रशिया अग्रीड टू क्रिएट अ लेबर मोबिलिटी फ्रेमवर्क. Okay, so this labor mobility framework is to like allow skilled and semi-skilled Indian workers to work in Russia. ठीक है, एग्जैक्टली क्यों करा है ये, बिकॉज रशिया हैज लेबर शॉर्टेज बिकॉज ऑफ द वॉर, ठीक है. वॉर की वजह से अभी हमारे पास उनके पास लेबर्स नहीं है, ठीक है. एंड दिस पॉपुलेशन इज फॉलिंग और माइग्रेशन जो है उसका इशू हो रहा है, ठीक है. तो क्या हुआ, इंडिया हैज लाइक अ मासिव वर्क फोर्सेस, ठीक है. हमारे पास तो आबादी ही आबादी है, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो वी आर रेडी टू हैव दैट रिलेशनशिप विद द रशिया, ठीक है. तो दे लाइक व्हाट दे वांट अ वर्क फोर्स एंड दे लाइक वांटेड टू बी सेफ, लीगल माइग्रेशन चाहिए, तो उस तरीके के पाथवेज क्रिएट किए जाएंगे ताकि यहाँ से हम लोग वहां पे जा सके और काम कर सके, ठीक है. तो इट विल लाइक गेन, इंडिया विल आल्सो गेन विद दिस, ठीक है. वहां पे रिमेंटेंसेस हो गए, ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलेंगे. फिर उसके बाद रशिया जो है मैन पावर गेन करेगा और इंडस्ट्री फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा. एंड देन अगेन वहां की इंडस्ट्रीज मेंटेन रहेंगी, तो इट विल हेल्प अस टू हैव बेटर इक्विपमेंट्स, ठीक है. समझ में आई पूरी कहानी? आवाज, हाँ एग्जैक्टली. सो दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्री, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कि दोनों ही कंट्री अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि वहां पे सिर्फ कोऑपरेशन नजर आए, विच इज नोन एज स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है. समझ में आ गया? तो हमें क्या समझ में आया कि पहले जो था इंडिया सिर्फ एक बायर था, राइट, एंड रशिया वाज अ सेलर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स. नाउ दोनों ने इस चीज पे अग्रीमेंट साइन कर लिया है कि दोनों ही जॉइंट रिसर्चेस करेंगे, को डेवलपमेंट करेंगे, को प्रोडक्शन करेंगे. अगर मुझे ये वर्ड्स नहीं मिले पेपर में, ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, को डेवलपमेंट करेंगे, को रिसर्च करेंगे, को प्रोडक्ट करेंगे इंडिया में, ठीक है. तो इंडिया का पहला गोल क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, कि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो हम लोग इतनी कर रहे हैं पहले उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे रशियन टेक्नोलॉजी को कि वो एक्सेस हो सके और बेसिकली डाइवर्सिफाई करे हमारा डिफेंस सप्लायर, ठीक है. अब ये सिर्फ हमें हेल्प नहीं कर रहा है, ये रशिया को भी हेल्प कर रहा है. कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करेगा डिफेंस इंडस्ट्री को फ्रॉम वेस्टर्न सैंक्शंस आल्सो, ठीक है. वो चाइना पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है. नाउ रशिया वांट्स टू बिल्ड रिलेशंस, वो इंपोर्ट और डिफेंस वाला ही नहीं, उससे ज्यादा दे वांट टू बिल्ड, ठीक है. नाउ दिस शोज वन मोर थिंग अबाउट इंडिया, रशिया इज सो मच इंटरेस्टेड इन अस. तो ये एक और चीज दिखाता है अबाउट अस. व्हाट? पहले वर वी सो लायबल कि हमारे साथ कोई ऐसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करे, बट नाउ दे आर डूइंग इट. सो समवेयर दिस इज शोइंग अस अबाउट आवर पावर आल्सो, राइट. सो ये हेल्प करेगा बेसिकली रशिया को भी कि वहां पे ईस्टवर्ड पे जितने भी डिफेंस पार्टनरशिप है, ठीक है, वो भी मेंटेन रहे. इंडिया के साथ रिलेशनशिप अगर रशिया मेंटेन कर रहा है, सो दिस इज गोइंग टू मेंटेन द दिस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द ईस्टवर्ड रिलेशनशिप आल्सो, ठीक है. तो फायदा इसमें रशिया का भी है, ठीक है. कहानी समझ में आ गई? हाँ एग्जैक्टली. ठीक है. तो रशिया ने प्रॉमिस किया है कि अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई होगा, ठीक है, कितने भी सैंक्शंस और ग्लोबल प्रेशर रहे, ठीक है, उस चीज पर उन्होंने, हाँ एग्जैक्टली, वो प्रॉमिस करा है रशिया ने, ठीक है. तो फॉर इंडिया दिस इज लाइक अ शील्ड अगेंस्ट ऑयल पॉलिसी, ठीक है. फाइनली एक चीज हमारे पास परमानेंट रहेगी एज रशिया प्रॉमिस टू अस, ठीक है. देन अ गारंटी ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी आल्सो, ठीक है. दूसरा डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम मिडिल ईस्ट डिपेंडेंस आल्सो, ठीक है. तो फॉर रशिया इंडिया इज वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट बायर, ठीक है. रशिया से सबसे ज्यादा खरीद इंडिया से सबसे ज्यादा खरीदा जाता है.
दैट यू हैव टू राइट डाउन, गुड। तो स्टेबल रेवेन्यू सोर्सेज जो है वो सैंक्शंस के ड्यूरिंग हमें देखने को मिले, ठीक है। तो दिस एनर्जी रिमेन्स द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। एंड एज डाइवर्सिफिकेशन ग्रोज, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ग्रो फाइनली हो रही है, इट्स नॉट द रिलेशनशिप ओनली अबाउट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट्स लाइक टर्निंग इनटू मोर देन दैट, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है एंड इकोनॉमिक बैकबोन भी बन रहा है फॉर अस आल्सो एंड फॉर देम आल्सो, ठीक है। एंड देन इट इज लाइक प्रोटेक्टिंग अस आल्सो एंड देम आल्सो, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रोटेक्शन पॉलिटिकली लेकर चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इंडिया क्लियरली एक्सटर्नल अफेयर्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर रही है एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दैट हैज लाइक दिस विजिट रिफ्लेक्ट्स अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी आल्सो, another keyword which you have to write down, strategic autonomy। इसका मतलब होता है कि इंडिया विल एंगेज ऑल मेजर पावर्स, ठीक है, इंडिया विल नॉट ज्वाइन एनी वेस्टर्न प्रेशर कैंपेन्स, राइट। और दूसरा, इंडिया विल नॉट बिकेम पार्ट ऑफ एनी एंटी रशिया ग्रुपिंग, समझ में आ गया, ठीक है। तो इट मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो, आइडियोलॉजिकल कैंप्स के बेसिस पे नहीं, ठीक है। सो दिस इज द एसेंस ऑफ इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग डॉक्ट्रीन, कौन सी है, मल्टी अलाइनमेंट, ठीक है, लिख लो, ठीक है। तो एट द सेम टाइम इंडिया जो है स्ट्रेंथ कर रहा है हमारे यूएस के साथ भी, ठीक है। बेसिकली जो हमारा डिपेंडेंसी है डिफेंस पर, ठीक है, इट इज गोइंग टू डिफेंड दैट आल्सो विद द फ्रेंड्स, ठीक है। और यूरोप के साथ भी हमारे कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है। फिर उसके बाद चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस कहीं ना कहीं मेंटेन होकर चल रहा है, एंड देन विद रशिया आल्सो, जो हमने अभी डिस्कस यहाँ पे किया। समझ में आई सारी कहानी? हाँ, ठीक है। नाउ हिस्ट्री अगर हम इसकी जानते हैं तो हिस्ट्री इसकी कहाँ से शुरू होती है? एनी आइडिया अबाउट द हिस्ट्री ऑफ? तुम नहीं, वो बोलेगा, तुम बोलोगे। ओके, तो कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, यहाँ से स्पेशली दिस 2000 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया हैज बीन लाइक इंडियाज लार्जर डिफेंस सप्लायर, ठीक है, और मेजर डिप्लोमेटिक सपोर्टर रहा है स्टार्टिंग से। तीसरा ये है कि पार्टनर इन स्पेस, न्यूक्लियर और डिफेंस टेक में भी कहीं ना कहीं वो हमेशा से खड़ा रहा है। फिर उसके बाद आफ्टर द यूक्रेन वॉर, ठीक है, और सैंक्शंस ऑन रशिया, ठीक है, द इक्वेशन नीडेड एडजस्टमेंट टू इट, इसीलिए ये विजिट कहीं ना कहीं की गई है, ठीक है। तो रशिया इज लाइक टाइटल्ड हेवी टुवर्ड्स चाइना, ठीक है, बट नाउ दे वांट टू एक्सपेंड दिस मोर, they want to build like a relationship with India more, ठीक है, they don't want to confront it to the China only, ठीक है। तो इंडिया डाइवर्सिफाइड डिफेंस इंपोर्ट्स, फिर उसके बाद इकोनॉमिक टाई करना चाहता है, दैट इज नॉट ओनली नैरो टू द ऑयल, ठीक है, और ज्यादा डिफेंसेस की तरफ वो जाना चाहता है, ठीक है। सो दिस 2025 विजिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज इट इज टॉकिंग अबाउट द रीबैलेंस एंड अबाउट द मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो, ठीक है, समझ में आए? चलो, कहानी समझ में आ गई यहाँ तक, अगली कहानी पे मूव करें। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि असम ट्राइबल बॉडी पेटिशंस प्रेसिडेंट अगेंस्ट एसटी स्टेटस फॉर 6 कम्युनिटीज, ठीक है। अब क्या हुआ कि असम में देयर हैज बीन लाइक अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फ्रॉम 6 कम्युनिटीज, ठीक है, 6 कम्युनिटीज है जिनकी डिमांड चल रही है और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी मासिव देखने को मिला है, कहानी समझेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो अब हुआ कि बेसिकली इन्हें शेड्यूल ट्राइब, एसटी ट्राइब के में स्टेटस चाहिए, राइट। These basically 6 communities, right? So their argument is that this ST, this status would bring these constitutional protection, ठीक है। अगर तुम्हें कोई ST status चाहिए, किसी community को ST status चाहिए, तो क्यों चाहिए होता है? What's the reason behind it? पहला, अपने कल्चर की, ओके, फॉर सेफ्टी ऑफ कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज, टू प्रिजर्व द लैंग्वेज, ओके, व्हाट एल्स? So that they can also have say in politics, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट जल्दी, ओके, मार्जिनाइज्ड ग्रुप टू बेटर ग्रुप, ओके, ठीक है, इन सारे रीजंस की वजह से होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि प्रोटेस्ट कौन कर रहा है और कौन चाहता है इस एसटी कम्युनिटी में आना, ठीक है। So basically 3-member group of minister, that is GOM, right, of the state government submitted a report in the Assam, ठीक है। उन्होंने रेकमेंड करा कि ये जो 6 कम्युनिटीज है इनको ऐड किया जाए हमारे नए स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो द प्रपोजल वाज लाइक वेरी मच इनटू द क्लासिफिकेशन। तो पहले ही यहाँ पे 3 कम्युनिटीज हैं, प्लीज लिख लो इनको। पहला है एसटी प्लेन्स, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटीज है इन प्लेन एरियाज, पहला है एसटी प्लेन्स।
दूसरा है एसटी हिल्स, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है हिल्स में, तीसरा है एसटी वैले, जो नई कैटेगरी आएगी इन 6 कम्युनिटीज के साथ, ठीक है। पहले ही 2 एग्जिस्ट कर रही है, प्लेन्स और हिल्स, जो तीसरी की लड़ाई हो रही है वो तीसरी की लड़ाई है हमारी वैली वाली, एसटी वैले, ठीक है। तो जैसे ही जीओएम ने रिपोर्ट किया, ठीक है, एंड दिस टेबल वाज स्ट्रक्चर, तो लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टूडेंट्स एंड दिस यूनियन दे अपोज द रिकमेंडेशन, ठीक है, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, उन्होंने कहा कि नहीं ये कम्युनिटीज ये थर्ड कैटेगरी बनाई ही नहीं जाएगी। क्यों किया होगा उन्होंने प्रोटेस्ट? व्हाट डू यू थिंक द रीजन माइट बी? बट व्हाई दे आर लाइक गोइंग अगेंस्ट इट? उनके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? उसमें कोई पॉपुलेशन है जो भी ट्राइब है वो किसी को फेवर करती हो तो उसके लिए जो दूसरे ट्राइब है वो चाहते हो कि इक्वल हो, इसके बेसिस एग्जैक्टली दे आर फाइंड लाइक बेसिकली फाइटिंग फॉर देयर आइडेंटिटी, ठीक है। अब जो जितनी भी हिल्स वाली हैं, ठीक है, दे आर लाइक वेरी ओल्ड कम्युनिटीज, वो पहले से एग्जिस्ट करती है, राइट। नाउ इफ दे आर एग्जिस्टिंग बिफोर, तो इसका मतलब उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई दे गॉट दिस स्टेटस, राइट। नाउ इफ समवन न्यू कैटेगरी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस, लाइक इट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रेशर आल्सो, अगर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे, राइट, इट इज गोइंग टू लिंक टू दी कंपटीशन, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो मार्च बेसिकली मासिव जो है हमें कहीं ना कहीं दिस रिलेशन वो सी, ठीक है। अब कहानी ऐसे हुई कि दिस ऑल असम ट्राइबल स्टूडेंट्स लाइक दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, दिस यू हैव टू राइट डाउन, ऑल असम ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन AATSU, they submitted a memorandum to the president of India through the district commission of खकरजुर। तो उन्होंने बेसिकली अर्ज किया कि इस जो स्टेट गवर्नमेंट की आप जो प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, उसको बेसिकली खारिज कर दो, ठीक है। तो बेसिकली दिस डिस्क्राइब द मूव एज एंटी ट्राइबल वार्निंग, अनदर कीवर्ड, ठीक है। अब इमेजिन करो जहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज, जिस देश में ट्राइबल कम्युनिटीज इतनी ज्यादा देखने को मिलती है, देयर कुड बी अ मूवमेंट कॉल्ड एंटी ट्राइबल, ठीक है। अब ये बेसिकली एंटी ट्राइबल सही है या गलत, दैट वी कैन नॉट से, राइट, बट दिस एंटी ट्राइबल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, इट इज गोइंग इन मासिव राइट नाउ, ठीक है। तो बेसिकली एसटी स्टेटस जो 6 कम्युनिटीज को देना चाहिए उसके अगेंस्ट में ये हो रहा है, ठीक है। उन्होंने मना करा है कि हम रिप्रेजेंटेशन नहीं करने देंगे आपको, ठीक है, जो तीसरी कम्युनिटियां बनाने की बात कर रहे हैं हम वो नहीं करने देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 क्योंकि ये आता है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 एज इट कम्स इन डाइवर्सिटी, ठीक है, एथिक्स, एंड दिस इज गोइंग टू आइडेंटिफाई इश्यूज लाइक कल्चरल प्लुरलिज्म इन इंडिया, or it is important for GS paper 3 as it is going to talk about welfare policies also, about the government also, about the social tribal also, and social welfare also. क्या बोले उसमें से एक लिखा होगा ढंग से, ठीक है। तो हुआ क्या कि 29 नवंबर 2025 को दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दैट इज जीओएम इन असम सबमिटेड अ रिपोर्ट, ठीक है, कि रेकमेंड किया कि ये 6 कम्युनिटीज जो है, ठीक है, और उनको भी इंक्लूड करा जो नई अभी एसटी कैटेगरीज में आई है, दैट इज एसटी वैली, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज असम ऑलरेडी हैज 2, ठीक है, कम्युनिटीज दैट इज एसटी प्लेन्स और एसटी वैलीज, ठीक है। तो नाउ अ थर्ड कैटेगरी इज प्रपोज्ड टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कोटास, ठीक है। तो दिस जीओएम सेड दैट विद इन अ 3 टायर स्ट्रक्चर these each category would have like separate quota, ठीक है, हर कैटेगरी का अलग अलग कोटा होगा, जो एग्जिस्टिंग एसटीज हैं, ठीक है, they would not lose their representation, ठीक है। ये चीज पहले से ही बता दी गई, लेकिन ये जो हमारा सोल्यूशन था, ठीक है, वो बेसिकली ट्रिगर करा सोशो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब ट्राइबल बेसिकली प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि these tribal bodies, right, including AATSU, जिसकी डेफिनेशन क्या है गौतम? ओके, तो बेसिकली उन्होंने फाइल करा पिटीशन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 5 दिसंबर को 2025 में कि ये जो आपने प्रपोजल दिया है, जीओएम ने प्रपोजल दिया है, उसको रिजेक्ट करो, क्योंकि ये जो 6 ग्रुप है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, इट इज टू एडवांस, ठीक है। दे आर्ग्यू कि जो कम्युनिटीज है वो वैसे ही सोशली मोर एडवांस्ड है, हम किसी को एसटी स्टेटस दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो इकोनॉमिकली वेलफेयर नहीं है, ठीक है, बट वो ऑलरेडी इतना ज्यादा एडवांस्ड है, तो आप उन्हें वो बेसिकली स्टेटस दे क्यों रहे हो, राइट। एंड देयर इज अनदर रीजन कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद रीजन है कि इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है, फिर उसके बाद डेमोग्राफिकली भी बहुत ज्यादा लार्ज है वो, ठीक है, पॉपुलेशन एरिया उनका बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, माइनॉरिटी में नहीं आती है वो कि उनको स्टेटस दिया जाए। तो ये सारी कंडीशंस हम तब देते हैं बेसिकली, जब हम स्टेटस तब देते हैं जब ये सारी चीजें कम हो, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पोर्शन में, तो इसलिए हमें नहीं देनी चाहिए, राइट। व्हाट दिस इज व्हाट दे आर फाइटिंग अबाउट।
So therefore, according to them, they do not meet the classical criteria that is laid down by Loker Committee that was introduced in 1965, जो कि तुमने नहीं लिखा है. प्रीलिम्स में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इन ईच एवरी एग्जामिनेशन. हाँ जी. तो दिस लोकल कम्युनिटी इंडिकेट्स कि प्राइमिटिव ट्राइबल ट्रेट्स होनी चाहिए, ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, बैकवर्डनेस होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमल इंटरेक्शन होना चाहिए मॉडर्न सोसाइटी से, कि वो बेसिकली गैजेट से या फिर जो हमारी आज की डेवलपमेंट है उससे वाकिफ ही नहीं है, राइट. एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग दोज ट्राइबल कम्युनिटी आउट, राइट, वांट टू इंट्रोड्यूस विद दीज फेसेस, इसीलिए वो इस स्टेटस में उनको डालती है एंड दे प्रोवाइड देम विद द रिसोर्सेज, ठीक है. बट एज इट वाज सेड कि वो सारी चीजें कंडीशंस मीट ही नहीं कर रही है, दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द लोकल कम्युनिटी दैट केम इन 1965, ठीक है. तो दिस फियर ऑफ ओवरवेलमिंग स्मॉलर ट्राइब्स, सो दिस इज लाइक द बिगेस्ट फियर फॉर दोज एग्जिस्टिंग ट्राइबल्स, ठीक है. वो बोल रहे हैं कि हमने ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रगल करा है, राइट, वी वेंट थ्रू सो मच, और उसके बाद आप लोग इन्हें जो पॉलिटिकली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट, एंड हु आर नॉट मीटिंग दिस क्राइटेरिया, आप उन्हें ये स्टेटस दे दोगे विच इज वेरी अनफेयर टू अस, टू आवर कम्युनिटी, ठीक है. So these 6 communities proposed constitute a large population much bigger than any existing tribes. इनमें से जितनी भी existing मिला के भी अगर तुम करोगे उससे कहीं ज्यादा population इनकी already है, ठीक है. So existing tribes worry that once this largest community enter the ST list, they will dominate jobs also, ठीक है, and they'll capture the reservation seats also, और उसके बाद overshadow कर देंगी these smaller voices जिसके लिए वो जो अपने हक के लिए वो लड़ते थे, जो protest करते थे, ठीक है. And after political representation will also be seen, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा गलत होगी. हंसी क्यों आ रही है? तो बेसिकली जो भी अभी आइडेंटिटी है, एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी की, कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज अनफेयर होगी, ठीक है. सो इन देयर आइज दिस इज नॉट इंक्लूजन, इट इज लाइक डेमोग्राफिक डोमिनेशन, अनदर कीवर्ड व्हिच यू कैन यूज, ठीक है. सो दिस फियर इज रूटेड इन हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन, कि बहुत ज्यादा छोटी छोटी ट्राइब्स जो है वो अपने लंबे इतने सारे बैटल्स को याद कर रही है एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, देयर कल्चर और अपना पॉलिटिकल स्पेस, ठीक है. इसीलिए बेसिकली उस चीज के अगेंस्ट है. समझ में आई? तो these tribal organizations they argue that ST status is not a welfare scheme, ठीक है. ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ताकि वल्नरेबल ग्रुप्स को बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाए, राइट. और दिस कम्युनिटीज दे आर नॉट ट्रेडिशनली ट्राइबल, राइट, एंड दे आर स्टिल एडेड, मीनिंग द ST itself is diluted, ठीक है, जिसके लिए हम इतना लड़ रहे हैं. वी आर लाइक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद दैट, और बेसिकली आप उनको क्राइटेरिया उनको इस क्राइटेरिया में लेकर आ रहे हो जो फिट ही नहीं बैठते अंडर दी कंडीशन, ठीक है. तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि अगर आप इनको लेकर आओगे तो इट विल लीड्स टू एथेंटिसिटी लॉस आल्सो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली लैंड, लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इन्हीं के बेसिस पे आपको स्टेटस मिलता है और हम लोग वही लूज कर देंगे, ठीक है. समझ में आया इतना? अब जो हमारे पास क्या कहते हैं प्रोटेस्ट आया, ठीक है, वो प्रोटेस्ट जो था दैट वाज नॉट एकेडमिक, ठीक है, इट इरप्टेड इन द स्ट्रीट, ठीक है, मासिव प्रोटेस्ट देखने को मिला. इट वाज लाइक सीन एज लाइक this petition was also submitted, right, and the student bodies carried like torchlight also, torchlight march की गई थी. फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट रैलीज भी जो थी वो थोड़ी सी एग्रेसिव भी देखने को मिली थी, और उसके बाद में दिस सीरियस इंसिडेंट, यू नो, प्रोटेस्टर लाइक दे डिड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइक मिसयूज ऑफ द पावर. कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने इसको एग्रेशन में बदल दिया, ठीक है, एज इट वाज सीन एट वन ऑफ द मेजर प्लेस आल्सो, जिसके बारे में बहुत ज्यादा हमने बात करी थी. क्या नाम था उस जगह का जहाँ पे स्टूडेंट्स ने ऐसी हरकत करी है? हाँ, यहाँ पे. हाँ, काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ले लिए लोगों ने. कितना प्राउडली बोल रहे हो तुम, उत्तराखंड से हो ना? अच्छा, हाँ, सॉरी, ठीक है. तो even if the state government recommends inclusion, it cannot change the ST list, ठीक है, under the article 342 of the constitution, ठीक है. ठीक है, तो द पावर टू डिक्लेयर शेड्यूल्ड ट्राइब लाइज विद द प्रेसिडेंट, ठीक है, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्टेट एंड द अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. असम जीओएम प्रपोजल मस्ट गो थ्रू. कैसे जाएगा? पहले स्टेट के पास जाएगा, फिर सेंटर के पास जाएगा, सेंटर के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, ठीक है. तो इस तरीके से जाएगा,
तुम्हें समझ में आ गया ना, क्लास में पूछती हूँ। सो दिस मेक्स इश्यूज बोथ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और अंडर दिस अगर ये एक बार इंप्लीमेंट हो गया तो चेंजेस विल बी वेरी लाइक इट इज नॉट डन, ठीक है। अब हिस्टोरिकली ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है असम के लिए, बिकॉज असम हमेशा से ही व्हेन इट कम्स टू एथनिक लैंडस्केप हमेशा से ही न्यूज में रहा है, ठीक है। ओवर द डेकेड्स दे आर लाइक प्लेन ट्राइब्स आल्सो, ठीक है, हिल ट्राइब्स भी रही हैं वहाँ पे, इंडिजिनियस कम्युनिटीज वहाँ पे रही हैं, ठीक है, माइग्रेंट ओरिजिन कम्युनिटीज रही हैं, उसके बाद कास्ट ग्रुप्स, एसिमिलेशन ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। अगर कहीं पे छोटी छोटी कम्युनिटीज आपको देखनी है इन सच लार्ज नंबर, देन यू कैन गो टू असम, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे हमेशा ट्राइबल कम्युनिटीज में तो हमेशा तुम्हें लड़ाई देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। समझ में आया इतना सब कुछ? Now this tribal classification is not just only on paper, it is like history of migration, ठीक है, it is like right under 6th schedule also, ठीक है, it is about the autonomy movement also, it is going to tell about statehood demands also, ठीक है, कि सिर्फ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम स्टेट की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डज स्टेट हैव, हाउ यू नो सेंटर इज गोइंग टू इंटरवेन इन दिस, अगर मासिव रिपोर्ट हुआ तो बेसिकली हम लोग कैसे डील करेंगे उस चीज से, सो दिस रिलेशनशिप आल्सो कुड बी सीन ओवर हियर, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस आइडेंटिटी की भी यहाँ पे बात होती है, और उसके बाद जितनी भी कम्युनल टेंशन पहले हुई है, ठीक है, वो भी हमने समझने की कोशिश करी। समझ में आया यहाँ पे सब कुछ? पार्लियामेंट में आलों की सीट बढ़ाने का था, इलेक्टोरल चीज के लिए कहा था। व्हेन? अभी रिसेंटली नहीं हुई है। आई डिड नॉट। ओके। असम में नहीं हुआ है, क्यों? तुम मुझसे ज्यादा वाकिफ हो उससे। क्यों? क्या नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ओके। अब ये 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस चाहिए, क्यों? ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें एक तो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, दूसरा हमें बैकवर्डनेस देखने को मिलती है, एज इट इज लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद दे लैक लैंड प्रोटेक्शन दैट इज एंजॉयड बाय द एसटीज आल्सो, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है वो हमें प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो जो उनकी डेमोग्राफिक आइडेंटिटी है उनको थ्रेट किया जाता है, ठीक है। जो भी उन्होंने बोला, ठीक है, व्हाटएवर दोस हिल्स एंड वैलीज सेड, उन्होंने कम्युनिटीज ने बोला, तो बेसिकली उसी का कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, ठीक है। अब this is not the first time that Assam has like witnessed something like this. This basically conflict is like going for the ages. ठीक है, past government also attempted to expand this ST list. ठीक है, इन 2 वैलीज के अलावा बाकी तीसरी ग्रुप भी पहले भी खोलने की बात हुई है, राइट? सो दे try to expand this list also, and they like try to revise these reservation list also. They try to reconstruct this tribal communities also. But हर बार कुछ ना कुछ ऐसी communities में लड़ाई देखने को मिलती है, and it is stop. और again this is in news, ठीक है। अब हर बार ये ट्रिगर करता है स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, कंसर्न ऑफ डेमोग्राफिक कंसिस्टेंसी, और उसके बाद आ जाता है हमारा आइडेंटिटी एंजाइटीज, ठीक है। तो इस वजह से हर बार ये कुछ ना कुछ न्यूज में लेकर आता है व्हेन इट कम्स टू द ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। अब ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द आर्टिकल 342 आल्सो, व्हिच इज व्हाट गौतम? यस, एंड इट टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ प्रेसिडेंट आल्सो। क्या है रोल ऑफ प्रेसिडेंट गार्गी इन दिस? ओके, सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या होगा? ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टर्स कैसे होंगे? ओके, फेडरलिज्म का क्या यूज है यहाँ पे अंकिता? एंड हाउ दे आर गोइंग टू कोऑपरेट विद ईच अदर, है ना? ओके, परफेक्ट। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, so will end today's news, and I'll see you in the next class.